يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اس کے کلام سے، اس کی کتاب سے، اس کے پیغام سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کرنے والوں نے قرآن مجید کو محض برکت کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا، انہوں نے اس علم سے محبت کی ہے اور انہوں نے اسے اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھا تو کیسے اس کلام کی تلاوت کی، کیسے انہوں نے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ابو تراب کہتے ہیں نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس ذات کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے جس کے ہاں کوئی بھی سوال کرنے والا محروم نہیں رہتا، یعنی ہر آیت سے اس کے مناسب مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کیا بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال، انبیاء کے حالات۔ قرآن مجید میں احکامات ہیں، جہنم اور جنت کے تذکرے ہیں، جھٹلانے والوں کے انجام کی باتیں ہیں۔ جو شخص پہلے لوگوں کا اور بعد میں آنے والوں کا علم حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ قرآن مجید پر غور کرے۔ قرآن مجید کے علوم میں سب سے بڑا علم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی پہچان ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کثیر ہیں جو اپنے اپنے فہم کی حد تک ہی انہیں سمجھ سکیں، ان ناموں کی گہرائیوں تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی۔ قرآن مجید سے محبت کرنے والے قرآن مجید کے فہم کے راستے میں رکاوٹ بننے والی چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ تین چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ توجہ محض حروف کی تحقیق پر مرکوز رہے، اسے معنی کیسے پتہ چلیں گے۔ دوسرے یہ کہ کوئی خاص مذہب کا مقلد ہو، تقلید کے ذریعے سے اس تک پہنچا ہو۔ تیسرا یہ کہ انسان کسی گناہ پر جمع ہوا یا تکبر کرنے والا یا کسی خواہش میں مبتلا، پھر اللہ تعالیٰ کا کلام کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ایسے تو وحی سے، فہم قرآن کی برکت سے محروم رہ جائیں گے۔ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے جو کامل توجہ رکھے۔ قرآن مجید کے فہم کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے توجہ اور انہماک شرط ہے۔ پھر قرآن حکیم کا مخاطب سمجھنا انسان کو نفع دیتا، کیونکہ جو اپنے آپ کو مخاطب سمجھتا وہ نصیحت حاصل کرتا۔ ہر بات کا رخ اپنی طرف کرنا نفع مند ہے۔ محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں من بلغہ القرآن فکأنما کلمہ اللہ، جسے قرآن پہنچ گیا گویا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس سے کلام کر لیا۔ تو قرآن مجید دراصل ہمارے رب کی جانب سے آنے والے خطوط اور پیمان ہیں جن پر ہم نمازوں میں غور کرتے ہیں، خلوتوں میں انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اعمال اور افعال میں انہیں عملاً استعمال میں لاتے ہیں۔ اور مالک بن دینار فرماتے ہیں اے ایک سورت والو اور اے دو سورتوں والو اور اے قرآن کے حافظو، قرآن نے تمہارے دلوں میں کون سی فصل بوئی ہے؟ قرآن مومن کے دل کی بہار ہے، بالکل ایسے ہی جیسے بارش زمین کی بہار ہے۔ تو قرآن نے تمہارے دلوں میں کیا بویا ہے؟ اور قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے قرآن کے ساتھ ہم نشینی کرنے والا ہر آدمی فائدے یا نقصان میں سے ایک چیز لے کر ہی اٹھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے جبکہ ظالموں کو خسارے ہی میں زیادہ کرتا ہے۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور ہمیں اس سے شفا حاصل کرنے کی
तौफीक अता फरमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। कुरान में हर्फ, हर्फों में कहानी, कहानी में इंसान, इंसान और कुरान, कुरान और रहमान, रहमान में खुशी, खुशी में रंग, रंग जिंदगानी के, जिंदगी में लगन, लगन में है कुरान। अल्लाह के पाक नाम से पहले पारे का 5वां रुकू देखेंगे। आइए तर्जमा देखते हैं। या बनी इसराइला, ए बनी इसराइल, उस्कुरू तुम याद करो, नियमती मेरी नेमत, अल्लती जो, अन्अमतु अता की मैंने, अलैकुम तुम्हें या तुम पर, व और औफू तुम पूरा करो, बिअहदी मेरे अहद को, ऊफी मैं पूरा करूंगा, बिअहदिकुम तुम्हारे अहद को, व और या सिर्फ मुझसे ही, फरहबून पस तुम डरते रहो, व और आमीनू तुम ईमान लाओ, बिमा उस पर जो, अनजल तू नाजिल किया मैंने, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला है, लिमा उसके लिए जो, माकुम पास है तुम्हारे, वला और ना, तकूनो तुम बनो, अव्वला पहले, काफिरिन कुफ्र करने वाले, बिही इसके साथ, वला और ना, तश्तरू तुम खरीदो, बी आयाती मेरी आयात के बदले, समनन कीमत, कलीलन थोड़ी, व और या सिर्फ मुझसे, फत्तकूनी पस तुम डरते रहो मुझसे, वला और ना, तलबिसु तुम मिलाओ, अलहक का हक को, बिल बातिली साथ बातिल के, व तक्तुमु और ना तुम छुपाओ, ना वही है जो पीछे का चल रहा है, यानी पीछे जो ला था उसका इफेक्ट यहां पर भी होगा। व तक्तुमु और ना तुम छुपाओ, अलहक का हक को, व अंतुम हालांकि तुम, तालमून तुम जानते हो, व अकीमु और तुम कायम करो, अस्सलाता नमाज, व आतू और तुम अदा करो, अज़्ज़काता ज़कात, वरकाऊ और तुम रुकू करो, मा साथ, अर्राकीन रुकू करने वालों के, अतअमुरूना क्या तुम हुक्म देते हो, अन्नासा लोगों को, बिलबिर्री नेकी का, व तंसौना और तुम भूल जाते हो, अनफुसकुम अपने आप को, व अंतुम हालांकि तुम, ततलूना तुम तिलावत करते हो, अलकिताबा किताब की, अफला तो क्या नहीं, ताकिलून तुम समझते, वस्ताइनू और तुम मदद मांगो, बिस्सब्री सब्र के जरिए, वस्सलात और नमाज के जरिए, व और इन्नहा बिलाशुबा वो, लकबीरतुन यकीनन बहुत बड़ी है, इल्ला मगर, अलल खाशिईन आजिजी करने वालों पर, अल्लज़ीना जो लोग, यज़ुन्नूना वो यकीन रखते हैं, अन्नहुम यकीनन वो, मुलाकू मुलाकात करने वाले हैं, रब्बिहिम अपने रब से, व अन्नहुम और यकीनन वो,
इलैहि तरफ उसके राजिऊन लौटने वाले हैं। अल्फाज की वजाहत है। अल्फाज की वजाहत फहम की वुसअत के लिए है। जब हम अल्फाज को वाज़े तौर पर देखते हैं तो ट्रांसलेशन करना ज़्यादा आसान हो जाता है। या बनी इसराइल, अगर आप देखिए तो या हरफे निदा है। या का मतलब है ए, बनी बेटो यानी औलाद के लिए आता है। इसराइल, ईल का मतलब है अल्लाह ताला और इसरा का मतलब है बंदा। बनी इसराइल ऐसी कौम को कहते हैं जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी, जिनमें कसरत से अंबिया आए। उस्कुरू, तुम याद करो, अलिफ पहले और वाव अलिफ बाद में। किसकी निशानी है? हैंड रेस करेंगे, हैंड रेस करें। कोई बताना चाहे आपने पहले क्या पढ़ा? इस तरह का कोई वर्ड पढ़ा है? जी बेटा, जी क्या पढ़ा पहले? ओ बुदू, जी। और क्या पढ़ा है? उसजुदू। वसजुदू जब करते हैं तो अलिफ जो है उसकी बजाय वाओ की जबर जो है सीन के साथ मिल जाती है, लेकिन असल इसकी उसजुदू है। जब असल पे जाएंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। जैसे हम इसे पढ़ेंगे, या बनी इसराइल लज़कुरू, जब आप लज़कुरू पढ़ेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये उस्कुरू है या ये कोई और है वर्ड। उस्कुरू, अलिफ पहले वाओ अलिफ बाद में, जमा, जमा का सीगा है और इसमें हुक्म है, अमर है, फेल अमर है। फेल तो है लेकिन इसमें हुक्म है। नेमती में या है, कौन बताएगा? या एंड पे आए तो उसका क्या तर्जमा हो जाता है? यस, मेरा। चलें, आप कोई एक चीज बताएं जिसको आप अपना कह सकती हैं, कोई भी। अरबी जुबान में कैसे बनाएंगे? हमने उस दिन बनाना सीखा था। किताबी। किताबी, किताबुल्लाही किताबी, अल्लाह की किताब मेरी किताब है। ठीक है, और कोई बताएगा अपने से मंसूब करके? जी जी। कलमी, मेरी कलम। जी। इन्नी, सुभान अल्लाह, ज्यादा अच्छी मिसाल दे दी। बेशक मैं, क्योंकि वहां तो इंसान को थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। अल्लती, जो। अल्लती की फैमिली में और मेंबर्स भी हैं। क्या अल्लती के फैमिली मेंबर्स को आप जानते हैं? कौन जानता है अल्लती के फैमिली मेंबर्स को? जी आप बताइए बेटा। यस। अल्लाजी, अल्लाजानी, अल्लाजीना, अल्लाती, नहीं, अल्लातानी, इतनी बातें नहीं बतानी, सब के दिमाग उड़ जाएंगे। सिर्फ वो फैमिली मेंबर्स जो हम कुरान में पढ़ चुके हैं। अल्लाई, हाउलाई। जी आप बताइए। अल्लजी, अल्लजीना, और अब पहले भी पढ़ चुके अल्लती। बस 3 फैमिली मेंबर्स को आप जानते हैं, बाकियों की तरफ ना देखें जिनका आपको पता ही नहीं। ठीक है। अनाम तो, मैंने इनाम की, मैंने अता की। आपने सूरह अल-फातिहा में क्या पढ़ा था? अनाम ता के ऊपर जबर है। ता फैमिली बताएंगे इसमें कैसे कैसे ता आती है? जी बताइए बेटा। ता पे जबर, ठीक है, और पीछे? जी आप बताइए। जी, ता के नीचे जेर और ता साकिन और ता के ऊपर पेश। जब पेश आती है तो उसका क्या मतलब होता है? जी, मैं। अनाम तो, मैंने इनाम की। एक पेश ने केस ही चेंज कर दिया। अनाम ता, तूने इनाम की। अनाम तो, मैंने इनाम की। अलैकुम, तुम पर या तुम्हें। ठीक है, अला और कुम ये दोनों आपस में मिल गए, कॉम्बिनेशन है ना। आपने कॉम्बिनेशन जरूर देखने हैं। ये जुड़ जुड़ के जो लफ्ज हमें जुड़े हुए नजर आते हैं ना, तो हमें लगता है ये कोई नई दुनिया है, नई बात है। तो ये नया नहीं है। अला और कुम, अला को देखें, अला की तरह और कौन से हुरूफ हैं? इला, तो कुम लगाएं इला के साथ। इलैकुम,
ٹھیک ہے. اور کم فیملی میں سے کون بتائے گا؟ کم. یس آپ بتائیے بیٹا. کا کما کم. ٹھیک ہے. علیکم تم سب پر. وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو. اوفو. اب دیکھیے گا پیچھے آپ نے کیا پڑھا؟ اذکرو. زال کاف را اس کا روٹ ہے. اور اوفو تم پورا کرو. جو حروف آ رہے ہیں یہاں پہ ہے تو فعل امر. اذکرو، اعبدو اور اسی طرح اسجدو کی طرح اوفو. صرف تھوڑا سا فرق ہے واو کی وجہ سے، تو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر برداشت کر جائیں، کچھ دنوں میں پتہ لگ جائے گا واو کیوں آ گئی یہاں. ٹھیک ہے. لیکن واو کی وجہ سے آپ ایک اور چیز دیکھتے ہیں، یہاں تو وفاؤں کی بات ہے. آپ لوگوں میں سے کس کو وفا اچھی لگتی ہے اور کس کو بے وفائی؟ بے وفائی کس کو اچھی لگتی ہے؟ لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کب کب بے وفائی کرتے ہیں، کیا سوچنا نہیں چاہیے؟ خود اپنے لیے تو وفا اچھی لگتی ہو اور رب کے ساتھ بے وفائی ہو. یا اللہ ہمیں بے وفائیوں سے بچا لینا. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوم سے کہا ہے اوفو، تم پورا کرو، وفا کرو. وفا یہی ہوتی ہے کہ انسان کا جو تعلق ہے اسے نبھائے، پورا کرے. اور یہاں پر پورا کرنے کے معنوں میں ہم اسے لے کر آئیں گے اوفو، پورا کرو، لیکن آپ اسے وفا کرو بھی کہہ سکتے ہیں. بعہدی. اب آپ مجھے اس کا آپریشن کر کے بتائیں گے. آپ لوگوں میں سے ڈاکٹر ہے کوئی ڈاکٹر ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے. ہاں جی. بعہدی آپریشن کریں اس کا. بی الگ ہو با. جاتا ہے. ہاں جی. الگ ہو جاتا ہے. یہ با کے نیچے جو زیر ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ بی کا ساتھ بھی ہوتا ہے، ساتھ بھی اور کو بھی. کو بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ اہدی. عہد. عین ہا دال. اس کا مطلب عہد سے ہے. عہد سے مراد عہد، وعدہ، کانٹریکٹ ہے. آخر میں یہ بھی ہے یہ میرا. میرا. تو یہ تین حصے ہیں اور ایک ورڈ بنا بی عہدی، میرے عہد کو. ٹھیک ہے. اوفی میں پورا کروں گا، وہی وفا ہے. وفا تو کبھی نہیں بدلتی. اگر آپ لوگ وفادار ہیں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے پہچانتے ہوں گے. وفادار شخص اپنی وفاؤں کو کبھی نہیں بدلتا، تو اس کا بھی وہی روٹ ہے. اوفی میں وفا کروں گا، میں پورا کروں گا. بعہدکم کون اس کا آپریشن کرے گا؟ بعہدکم. یس آپ. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ والے لوگ زیادہ متاثر ہو گئے. جی میم یہاں پہ بی جو ہے دوبارہ کو کے لیے کافی ٹی کو آپ نے بتایا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یوز ہو رہا ہے. آہدی دوبارہ عہد کے لیے کم تمہارے. تو جی تم تمہارے سب کے. اور کم کی فیملی کون سی ہے؟ کا کما کم. آپ دیکھیں کیا آپ قرآن پڑھا سکتے ہیں؟ الحمدللہ. انشاءاللہ. 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 اور آپ پڑھا رہے ہیں نا ہمیں. ابھی جب میں آپ سے پوچھتی ہوں تو آپ پڑھاتے ہیں نا الحمدللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. و اور ایا صرف مجھ سے ہی. ایاکا ایا دونوں میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ جی پیچھے سے آپ بیٹا. ایا کیا مطلب ہے؟ یا صرف مجھ ہی سے، یا کا صرف تیری ہی. صرف تیری. اس میں اخلاص نظر آتا ہے. خالص اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیسے ہوا جاتا ہے؟ ایاکا صرف تیری. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. لیکن یہاں ایک اور بات ہے، اخلاص کا ایک اور راستہ ہے. وہاں بات عبادت کی تھی، یہاں بات کس کی ہے؟ وَإِيَّايَ اور صرف مجھی سے. فَارْهَبُونَ پس تم ڈرتے رہو مجھ سے. جانتے ہیں یہ جو روٹ ہے نا را ہا با، یہ ایسا خوف ہے جو انسان کو دنیا کی لذتیں نہیں لینے دیتا، دنیا سے بھگا دیتا.
जबकि खौफ और तरह के भी होते हैं. जैसे कोई सांप से खौफ खाए तो भाग के थोड़ी देर के लिए चला जाएगा, जब सांप चला जाएगा वो वापस आ जाएगा. लेकिन रहबानियत ऐसे खौफ को नहीं कहते हैं. अल्लाह ताला ने रहबानियत का हुक्म नहीं दिया, डरने का हुक्म दिया है, दिल से डरना. रहबानियत तर्के दुनिया है, और इसके मुकाबले में अल्लाह ताला जो चीज डिमांड करते हैं रब्बानियत है. रब्बानियत का मतलब है अल्लाह वाला होके रहना, लेकिन दुनिया ही में रहना, दुनिया छोड़कर नहीं भागना. फरहबूनी, पस तुम डरते रहो मुझसे. कौन बताएगा ये नून के नीचे जेर जो है इसका क्या मतलब है? क्या इसका भी कोई मतलब होता है? जी आप बताना चाहते हो, बताओ. मुझसे कहां से ये तर्जुमा कर लिया हमने? है तो सही, जो है इसका मतलब है मुझसे मुझसे. या मेरी. हम कैसे मान लें आपकी बात कि इसका तर्जुमा मुझसे है? इसमें से ये उड़ गई है. जो जेर होती है ना वो डिपिक्ट करती है ना, और वो या को डिपिक्ट कर रही है. ठीक है, जेर. तो आप लोग तो बड़ी बड़ी चीजों को इग्नोर करने के आदी हैं, तो छोटी सी जेर आपके सामने क्या हैसियत रखती है. लेकिन अब आप कॉन्शियसनेस सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. और कॉन्शियसनेस का नाम ही तकवा है. ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर. वा और आमीनो, तुम ईमान लाओ. आमीनो की तरह की का एक और वर्ड है, कौन बताएगा? हमने देखा था आमीनो, तुम ईमान लाओ. जी बेटा, आमन्ना ठीक है, एक एतबार से आमन्ना हम ईमान लाए. जी कोई और बताए. जो मैं पूछना चाह रही हूं उस तक कौन सा इंटेलिजेंट फर्द पहुंचेगा? जी आमनु. सुभान अल्लाह. अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए और आपके फहम में बरकत दे. आमनु और आमिनु जेर और जबर का फर्क है ना. जब आमनु था तो इसका मतलब था वो सब ईमान लाए, लेकिन मीम जेर हुई तो अब उसे हुक्म मानना पड़ेगा. जेर हो गई है ना. आमीनु, तुम सब ईमान लाओ. आमीनु. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जेर जबर हो जाए और उसका तर्जुमा हुक्मी अंदाज में अमर की सूरत में आए. आमीनु और आमनु को कौन कौन मिक्स करेगा आइंदा? इसका तर्जुमा कौन आपस में मिलाएगा? कौन कौन इसका तर्जुमा गलत करेगा? कोई नहीं करेगा. अल्हम्दुलिल्लाह. इस पे क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. बिमा, उस पर जो. बिमा, इस फैमिली में कोई और भी ऐसे इस फॉर्मेट पे हुरूफ आते हैं? कौन बताएगा? जी बुशरा. लिमा ठीक है, और कौन बताएगा? जी जी लम्मा ठीक है. वेरी नाइस. बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए. ठीक है जी. जी देखिए, इसी वजन पर लेके आइए ना, जहां सिर्फ इतनी सी बात याद रखें. माँ से पहले कौन कौन से हुरूफ लगेंगे? अब आप लगाते जाएं. कमा, और क्या लगेगा? इन्नमा, और लगाएं. लम्मा ठीक है, और मिम्मा ठीक है, ठीक है, और कुल्लमा ठीक है. तो ये सारे हुरूफ आप साइड पे लिख लें, ये आपकी याददाश्तें हैं. आपको 1000 बार भी लिखना पड़े, हारना नहीं है. आप लोगों में से कौन हारना चाहता है? कल कोई हारना चाहता था, वो किधर गई जो हारना चाहती थी? यहां मौजूद है. आप हारना चाहती थी, आजो आगे, आजो आजो. आज कुछ इफाका है, आजो आजो, शाबाश. आज आपने क्या नाश्ता किया था बेटा? क्या खा के आए थे? माइक ले लो. देखें जी, मेरा एक पेशेंट है, मैं उसका इलाज कर रही हूं, और वो पेशेंट ऐसा है जो दिल से हार जाता है. तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला ये कभी नहीं हारेंगी, है ना? जी बेटा बताओ. अगर इसको
सेब खा के थी। सुबह सेब खा के आई थी, ठीक है. An apple in the day keeps the doctor away. ठीक है, तो आप तो डॉक्टर के पास आके खड़ी हो गई हैं एप्पल खा के, हैं. लेकिन आप कोई, यानी आप तो सिर्फ माइक लेने आई थी, दवा लेने नहीं आई, है ना. तो जरा डेंटिस्ट से होशियार रहिएगा, दांत निकाल देते हैं जल्दी. वैसे दांतों का इलाज भी करते हैं, ठीक है जी. बेटा अब क्या हाल है आपका? हारना है? नहीं, थक जाती हैं? अब थकना? इंसान अपनी फूड से, उसकी कमी से नहीं थकता, हिम्मत टूट जाती है बेटा. आप फील करती हो कि हिम्मत टूटती है? पता है हिम्मत कैसे टूटती है? इंसान अपने आप को रॉन्ग मैसेज देता है. आप में से कौन है जो सच्चा इंसान है और ये मान सकता है कि मैंने कभी अपने आप को रॉन्ग मैसेज दिया है? अच्छा, कुछ लोग सच्चे हैं, ठीक है. बाकी लोगों ने रॉन्ग मैसेज ही कभी नहीं दिया. अच्छा, किस किस ने दिया? दोबारा हैंड रेस करें. जी जी सादिया, आपने क्या रॉन्ग मैसेज दिया कभी? कोई रॉन्ग, कभी कोई होता ना कोई वक्त ऐसा जिसमें इंसान उस बात को गलत नहीं समझ रहा होता. अच्छा, ये काम ऐसे ही होना है, ऐसे ही होता है. ये सादा सी बात है जो आम तौर पर जुबानों से निकल जाती है. लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस बारे में इंसान कह दे अच्छा यहाँ तो होना ही ऐसे, तो इंसान की हिम्मत टूट जाती है. ये मैं वैसे एग्जाम्पल के तौर पर कह रही हूँ, लेकिन आप बताएंगे कि आप कौन सा रॉन्ग मैसेज दिया जिसका इम्पैक्ट आया लाइफ पे? बहुत दफ़ा होता है कि आप अपनी कैपेबिलिटी को गलत जज कर लेते हो, लाइक जज योरसेल्फ रॉन्गली. आपको लगता है कि आप इस चीज़ के शायद केपेबल नहीं हो, कर नहीं पाओगे, लेकिन जब अल्लाह से मदद मांगकर आप वो करते हो ना और आप उससे बेहतर कर लेते हो, तो फिर आपको लगता है कि आपने जो मैसेज दिया था वो रॉन्ग था अपने आप को. तो सही. अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ये कैपेबिलिटी कितनी कीमती बात है बेटा. लोगों के एक्सपीरियंसेस से फायदा उठाना चाहिए. आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको ये लगता है मैं फलां काम नहीं कर पाऊंगी? काफी लोग हैं तकरीबन. अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इंशाअल्लाह ताला जल्द अरबी बोलने लग जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन आप देखें, जिस वक्त आप उसके लिए अमली कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी हिम्मत टूटने लग जाएगी. ज्यादा दिनों तक आप ये नहीं कह सकेंगे कि मैं ये काम कर सकती हूँ. लेकिन जिंदगी में होता ही ऐसे है कि इंसान अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं ये काम कर नहीं पाऊंगी. आप लोगों में से कितने लोग हैं जो गोल चपाती बनाते हैं? अच्छा, बनाते हैं. कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि मैं गोल चपाती नहीं बना सकती? हाँ. तो आपकी हिम्मत टूटी हुई है ना. हिम्मत क्यों टूटती है? एक दो दफा किया होगा, उसके बाद कहा होगा ये नहीं मेरे से होता, या फिर ये कि कोशिश ही नहीं की होगी, है ना. तो कौन कौन गोल चपाती बना लेगा इंशाअल्लाह? अब देखिए, आपने अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है. अपने आप को गलत मैसेज देने से रुक जाएं, अपने साथ इंसाफ करें, अपने साथ वफा कर लें. कभी ये बात नहीं कहनी मैं ये नहीं कर सकती. दुनिया में आम लोगों की कामयाबी का राज इतना है, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं. और मुसलमान की कामयाबी का राज क्या है? इंशाअल्लाह मैं कर लूंगी, इंशाअल्लाह. क्योंकि वो मुसलमान है और अपने मामलात को अल्लाह ताला के हवाले करता. लेकिन ये कितनी अजीब बात है, मुस्लिम होकर किसी की हिम्मत टूट जाए. क्या आपका रब नहीं है? मैं एक बड़ी मजे की बात आपको बताना चाहती हूँ जो आपको पता है. सूरा अल अलक जब नाजिल हुई, यानी पहली वही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया था? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मना रहे थे इकरा, और आप कह रहे थे मा अना बिकारिन. उन्होंने फिर कहा इकरा, आपने कहा मा अना बिकारिन. उन्होंने फिर कहा इकरा, आपने कहा मा अना बिकारिन. तो इसका मतलब यह है कि जब तक इंसान अल्लाह ताला के साथ डायरेक्टली शऊर की गहराई के साथ नहीं जुड़ता, उसकी ऐसी ही कैफियत होती. तो असल में ये आपकी हिम्मत का टूटना नहीं है,
अल्लाह ताला से बेताल्लुक होना है, अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए, क्योंकि असल में अल्लाह की रस्सी छूटती है, अल्लाह ताला से उम्मीद बांधना टूटता है, अल्लाह ताला पर तवक्कुल खत्म होता है, अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं रहती, अल्लाह ताला का खौफ नहीं रहता, इसलिए इंसान की हिम्मत टूट जाती। तो जब एक पेशेंट को ये पता चल जाए कि मेरी बीमारी क्या है, डायग्नोज हो जाए और उसे ये भी पता चल जाए इसका इलाज इस दवा में है, तो फिर उसको कोशिश करनी चाहिए ना। इखलास कैसे आता है? हमने दो बातें देखी हैं। कौन इंटेलिजेंट है जो बताएगा इखलास कैसे आता है? कुरान की रोशनी में, दो आयात की रोशनी। आप माशाअल्लाह, आपका नाम क्या है बेटा? मरवा। मरवा तो वैसे ही इखलास वाली जगह है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मरवा, आप कुरान हकीम से मिसाल दें, इखलास कैसे आता है किसी इंसान के अंदर? दादा एक तो हमने देखा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में, ठीक है। दो बातें इखलास के बारे में आपको पता चली हैं। आप खालिस कैसे होंगे? अपनी इबादत की तरफ तवज्जो करके, सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। नमाज में, इबादत में कुछ और नहीं सोचते रहना, अपनी नमाज को ठीक करना है। और क्या करना है? दूसरी चीज है सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी है। तो आपने मदद मांगी थी कि या अल्लाह मेरी हिम्मत टूट जाती है, आप मेरी मदद फरमाइए? नहीं मांगी। तो देखे कमी है ना। तो आप भी अपनी जिंदगी में देखेंगे कमी कहां से आती है। अल्लाह ताला से मदद नहीं मांगते, फिर ना हिम्मत आती है, ना खालिस हो पाते हैं। और तीसरी बात क्या है बेटा? और व इय्याया फरहबून, अल्लाह व ताला का इय्याया फरहबून। सुभान अल्लाह। बेटा आप ये पॉइंट्स अलग लिख लो, अल्लाह ताला ने आपको दी। और जितने लोगों को समझ आ गई ना, वो इस पर छोटा सा कुछ लिखें जरूर। आज लिखेंगे, आइंदा आने वाले कल में आप देखेंगे कि यही चीजें आपकी जिंदगी में शामिल हो रही हैं। सिर्फ अल्लाह ताला का खौफ, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में, ईमान में, इल्म में, फहम में, अमल में बरकत अता फरमाए। और देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, व आमीनू, और ये ईमान की बातें हैं। साहबे कराम जब एक दूसरे से मिलते थे ना, तो एक दूसरे से कहते थे आओ एक घड़ी ईमान की बातें कर लें। तब देखें आप लफ्जी तर्जमा पढ़ रहे हैं लेकिन ईमान की बातें कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको ईमान के रास्ते में से कितनी चीजें पता चली? ईमान का रास्ता, ईमान ले आओ। आपको पता चला इबादत, आपको पता चला इस्तिआनत, इखलास है, आपको पता चला खौफ। इससे बंदा खालिस होता है, अल्लाह ताला का खौफ रखने से। जब इंसान अपने जैसे इंसानों से डरता है ना, तो खोटा हो जाता है। अपने जैसों से कभी नहीं डरना। कोई उम्र में बड़ा है या छोटा, कोई मर्तबे में बड़ा है या छोटा, किसी इंसान से नहीं डरना, किसी इंसान का खौफ नहीं रखना, किसी इंसान का रोब नहीं खाना। एक अल्लाह का ये हक है, अल्लाह ताला का हक उसको देना है, तभी तो आप वफा करेंगे। और आप पता है हम बेवफाओं की दास्तान पढ़ रहे हैं। ईमान फरोशों की दास्तान शुरू हुई है यहां से, कैसे उन्होंने अपना ईमान बेच डाला था। तो उनसे हम सबक सीखेंगे। जैसे लुकमान हकीम से किसी ने कहा आपने अक्ल कहां से सीखी? उन्होंने कहा बेवकूफों से, उनकी बेवकूफियों से। जब मैं देखता था तो मैं कहता था ये काम मैंने नहीं करना। तो इन कौमों के हालात इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें पढ़ाए हैं कि हम आइंदा ऐसी नादानियों से बच जाएं। अल्लाह ताला हम सबको बचा ले। व आमीनू, और तुम ईमान लाओ। हमजा मीम नून इसका रूट है और हम पहले पढ़ चुके। और बिमा उस पर जो, और कितनी बड़ी फैमिली बिमा की बन गई ना, ठीक है। अंजलतु, क्या रूट है इसका? नून जा लाम, ठीक है। ये तो सबको पता चल गया ना। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? इसी जैसा अनअमतु, ठीक है। हुरूफ की क्या तब्दीली है ना, फॉर्मेट तो एक जैसा है। नाजिल किया मैंने,
मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला है। मुसद्दिक में रूट क्या है बेटा? स्वाद दाल काफ, और इसका एक फॉर्मेट है मुसद्दिकुन। कभी आपने किसी का नाम सुना है मुसद्दिक? मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला है, सर्टिफाई करने वाला, ठीक है। अब आप देखिए कि करने वाला कौन होता है, उसको ग्रामर में क्या कहते हैं? फाइल, इसम फाइल है ना। मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला है, लिमा उसके लिए जो, ये आप जानते हैं, माकुम, माँ का मतलब होता है साथ। हमारे यहाँ जब किसी को शादी के लिए बुलाते हैं तो कहते हैं बमा अहलो अयाल। बा का मतलब भी साथ है, माँ का मतलब भी साथ है। तो बमा जो है ना वो जहालत की वजह से कहते हैं, माँ काफी है, माँ अहलो अयाल। वैसे शादियों में इतने अहलो अयाल को बुलाने की जरूरत क्या है? लेकिन बहरहाल माँ के मिसाल के तौर पर तो हम देख सकते हैं ना, माकुम साथ तुम्हारे या पास तुम्हारे, ठीक है। वला तकूनो, तकूनो हम पहले देख चुके हैं, ता और वाव अलिफ आखिर में, बीच में क्या रह गया? काफ वाव नून। अपनी जुबान में बताइए कौन कौन से अल्फाज आते हैं इसी से? कौनो मका, और क्या आता है? कायनात, कायनात यूनिवर्स भी इसी से। कुन फयकून, आपने सुना कि अल्लाह ताला जब किसी चीज का हुक्म देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कुन। कुन का मतलब क्या है? हो जा। आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं फिर भी आपको पता है। कुन हो जा, फयकून तो वो हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो ये सिर्फ फर्क है या की बजाय ता। लेकिन वाव अलिफ जो है, ला तकूनो, ना तुम हो जाओ, काना की फैमिली है, काना यकूनो, ठीक है। कुन फयकून, ठीक है। अव्वला पहले, अव्वल कैसे कहते हैं? पहले को। और दूसरे को क्या कहते हैं? दूसरे का पता नहीं। अल्लाह ताला आपको हमेशा अव्वल रखे, ठीक है। लेकिन कुफ्र में कभी अव्वल नहीं आना, ईमान में अव्वल आना है, ठीक है। बनी इसराइल को भी तो अल्लाह ताला ने यही कहा था कि सबसे पहले कुफ्र करने वाले तुम न बन जाना, अव्वल काफिरिन, कि ये जो किताब आई, ये जो रसूल आया, इसके साथ तुम सबसे पहले इनकार करने वाले ना बनना। बिही तो आप जानते हैं, बी ही, साथ इसके। ये ही क्या है? हु फैमिली है ना। बताइए इसके कौन से मेंबर्स हैं? इकट्ठे बोले, आगे भी बता दें। ये इधर फेमिनिज्म से ताल्लुक रखने वाले बैठे हैं। हा हुमा हुन्ना, जी ठीक है, मुन्नस के लिए आता है हा हुमा हुन्ना, ठीक है। तो आप लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं कि किसी लड़की या औरत के लिए कौन सी ज़मीर इस्तेमाल होती है? दिलचस्पी है तो बोलते क्यों नहीं? दिलचस्पी का इजहार कर लें। अब बताइए मुझे, हु फैमिली में कौन कौन आता है? छह मेंबर्स का पता चल चुका है आपको। और मैं अजीब बात बताऊं आपको, जब ये आगे जाएंगे ना सेकंड पर्सन के लिए, तो फिर ये बदल जाएगा। हु गायब, कोई और आ जाएगा। वो और कौन है उनके बारे में आप जान रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें इधर नहीं जोड़ना, अभी नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि इसके बाद आपको लगेगा ये बोझल हो रहा है, और अलग अलग सारा सीख जाएंगे तो खुद ही आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और आप इसकी अगली सारी फैमिली को जान चुके हैं, लेकिन अभी पुख्ता नहीं है, तो इल्म को पुख्ता कर लें, ठीक है। वला तश्तरू, अब आप देखिए, वला तकूनो वला तश्तरू, एक ही वजन है ना तुम खरीदो। खरीदो, फरोख्त को क्या कहते हैं अरबी जुबान में? जी, खरीदने वाले को क्या कहते हैं? मुश्तरी, होशियार बाश। अच्छा, जब आप इल्म को हासिल करते हैं ना, तब भी आपको होशियार रहना चाहिए, कोई गलत चीज ना सिखा जाए, खुली आंखों के साथ देखना चाहिए, ऑथेंटिक नॉलेज लें।
ہر چیز کوئی بتا دے تو ہر چیز ہی قبول کر لینی ہے، ایسا کبھی نہیں کرنا. صرف سچی بات کو، حق کو قبول کرنا ہے، نہ حق کو نہیں. اور حق جہاں سے بھی ملے اسے قبول کرنا ہے انشاءاللہ. وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم خریدو. کیا روٹ ہے اس کا؟ اللہ اکبر، مشکل ہے. تا کو نکالیں، پہلے تا نکال دیں. نکال دیا. اور واو الف بھی نکال دیں. نکل گیا. ٹھیک ہے، باقی کیا رہ گیا؟ نہیں، ابھی تو کچھ اور رہتا ہے. وہ جیسے جو لوگ کسی دائرے میں نہیں آتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسی وزن پر بولیں، شتر بے مہار. ٹھیک ہے، تو ابھی تو ہمارے پاس شتر ہے. ٹھیک ہے، شین تا را ہے، لیکن تا اس کی اصلی نہیں ہے، ایڈیشنل ہے. ٹھیک ہے، اس کا اصل پھر کیا ہے؟ شین را یا. ٹھیک ہے، اور یہ جو تا آ گئی، یہ کہاں سے آ گئی؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کسی فیملی میں بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو بہو شامل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ فیملی کا حصہ بن جاتی ہے. تو اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں، اس کے اصلی افراد 2 تھے اور چلو ان کا ایک بچہ ہوا، یہ 3 تھے. یہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی اس نے آنا ہی تھا، تو اب فیملی بڑھ گئی. تو یہ باب کون سا ہے؟ افتعال ہے. ٹھیک ہے، افتعال. تو آپ کو کسی نئے دروازے کا پتہ چلے تو آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ آپ کو حرم کے سارے دروازوں کے نام آتے ہیں؟ کسی کسی کے نام آتے ہیں. کون کون سے دروازے؟ گیٹ، باب جی، باب عبدالعزیز. اور کس باب کا نام آتا ہے؟ ہینڈ ریز کر دیں، کیونکہ اب سارے لوگ مختلف ہو گئے نا. جب سب جانتے ہوں تو جی آپ کسی کا نام؟ باب فہد. اچھا، آپ کو کس کا نام آتا ہے؟ باب فتح. جی یہی کہنا تھا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اچھا ہو گیا. جی آپ نے کون سا بتانا ہے؟ وہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، باب عبداللہ نئی انٹری ہے. ٹھیک ہے، آپ کب عمرہ کر کے آئی تھی؟ 3 سال پہلے. ٹھیک ہے، تو لیٹسٹ جو چینجز آ رہی ہیں ان کے بارے میں پہلے والا نالج جو ہے وہ کافی نہیں ہے. تو اپنے علم کو تر و تازہ رکھنا چاہیے. پچھلے والے علم پہ ہی بلیو کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ وہ کم ہوتا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، سمینہ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اچھا، تصویر دکھائیے گا. اب دیکھیں، تصویر دکھا دیں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے جی، باب عمرہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ٹھیک ہے، چلو کئی باب ہیں جن کے نام آپ کو پتا چلے، اور آپ کو لاہور شہر کے دروازوں کے نام بھی پتا. آج ملتان کے دروازوں کے نام دیکھتے ہیں. ملتان میں کون کون سے باب ہیں؟ جی، دولت گیٹ ہے. جی، بوہر گیٹ. بوہڑ گیٹ ہے. جی، اور کون سا ہے؟ پاک گیٹ ہے. اور کون سا ہے؟ حرم گیٹ ہے. جی، دہلی گیٹ ہے. جی ٹھیک ہے، اور کون سا گیٹ ہے بھائی ملتان میں؟ ٹھیک ہے، تو علم کے بھی کچھ دروازے ہیں نا، عربی زبان کے علم کے دروازے ہیں. تو آپ کو جب دروازوں کا نام پتا چلے تو آپ الحمدللہ ضرور کہا کریں. سمنن، قیمت. اور آپ کو پتہ ہے سمینہ کسے کہتے ہیں؟ آپ تو خود ہی بہت ماشاءاللہ صاحب علم ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ